सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Good morning, my dear students. Once again, I am before you with a novel thoughts. My dear students, labor is the most important part to convert your effort into success. सफलता का कोई मंत्र नहीं है। सफलता तो सिर्फ परिश्रम का प्रतिफल है। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो सफलता मिलनी निश्चित है। कठिन परिश्रम और उचित मार्गदर्शन यदि दोनों का समावेश एक साथ है तो आपको सफल होने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। धन्यवाद। Now come to the point. Today we are going to discuss about an important question to all of you. Always it will be asked in your examination for 4 to 5 marks. Dear students, in this chapter accounting for fundamentals partnership forms, we are discussing yesterday about profit and loss appropriation account, and in class 11th we have discussed about profit and loss account. Then today we will discuss about the distinction between the both. What is the differences between a profit and loss account and profit and loss appropriation account? This is our today's topic. My dear student, you may draw 3 columns when you are writing answer in your answer sheet. First column is for basis of distinction, second column is for profit and loss account, and third column is for profit and loss appropriation account. First point, you should write in the column of basis of distinction, that is stage of preparation. For profit and loss account, it is prepared after trading account, and hence starts with the gross profit disclosed by trading account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि यह ट्रेडिंग अकाउंट के ठीक नीचे यानी ठीक उसके बाद बनाया जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस के लिए कैलकुलेट किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, या फिर कोई ग्रॉस लॉस है ट्रेडिंग अकाउंट में तो उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत होती है। बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Already yesterday I told that profit and loss appropriation account is the extended form of profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही जो अगला पार्ट है, अगला हिस्सा है, वह प्रॉफिट एंड लॉस, और जो अगला स्टेज है वह है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का अगला स्टेज क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही अगला स्टेज जो है वह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। मैं राइट दैट प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account is prepared after profit and loss account,
and hence starts with the net profit or net loss disclosed by profit and loss account. This was the stage of preparation. Second important basis of distinction is objective. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का उद्देश्य क्या है? यू ऑल नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain net profit or net loss of the business concern, and profit and loss appropriation account, it is prepared to distribute the net profit of the year among the partners. This is the purpose to prepare profit and loss appropriation account. Now next point is opening or closing balance. In profit and loss account, it has neither opening or nor closing balance. यहाँ कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिस अकाउंट में हैव ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस. इसका ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट and most important point to all of you. चार्ज और एप्रोप्रिएशन. ये चार्ज क्या है, एप्रोप्रिएशन क्या है, पहले इस बात को आप समझ लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. पहले इस बात को समझेंगे, उसके बाद फिर से हम डिस्टिंक्शन में आएंगे. तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट को समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए. Charge against profit indicates expense to be deducted from profits while calculating net profit or net loss. Charge against profit इस बात को बताता है कि जब ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाल लेते हैं, तो उसके बाद जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का उद्देश्य होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को निकालना, बिजनेस के नेट प्रॉफिट या बिजनेस के नेट लॉस को फाइंड आउट करना. तो बिजनेस के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को फाइंड आउट करने के पहले जितने भी प्रकार के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं उनको घटा लिया जाता है. ये इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इंडिकेट्स एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और लॉस. तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका. अब आइए, व्हाट इज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. ये बार बार जो शब्द आता है, एप्रोप्रिएशन क्या है आउट ऑफ प्रॉफिट्स. तो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स टू वेरियस हेड्स. जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला जाता है और उस नेट प्रॉफिट को फिर ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. तो उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग हेड्स में एज पर एग्रीमेंट. पार्टनरशिप बिजनेस में जो एग्रीमेंट किया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कमीशन या किसी पार्टनर को सैलरी देने के लिए, उन सबों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिख करके उसी प्रॉफिट से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. और उसके बाद फिर जो प्रॉफिट बचता है नेट प्रॉफिट, उसको सभी साझेदार अपने एग्रीमेंट के हिसाब से या फिर एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इक्वली बांटते हैं. तो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मीन्स distribution of net profits to various heads. It is very clear what is charge against profit and what is appropriations out of profits. Now come to the point. अब हम अगले डिस्टिंग्यूशन की ओर बढ़ेंगे. We are going to discuss about
differences, distinction between profit and loss account and profit and loss appropriation account. So our next point is charge or appropriation. In profit and loss account, expenses debited to this account are charged against profit. जो भी एक्सपेंसेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं वे सभी एक्सपेंसेज क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं. एंड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आइटम्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. जो भी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं ये सभी आइटम एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स कहे जाते हैं. Next basis of distinction is partnership agreement. In profit and loss account, it is not prepared on the basis of partnership agreement except for interest on loan from partners. जब कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है तो इसको बनाने के लिए साझेदारी समझौते की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है. इसको साझेदारी समझौते से कोई लेना देना नहीं होता है. जैसे आपने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए सीखा उसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना दिया जाता है. लेकिन इसमें से एक आइटम एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं उसका संबंध पार्टनरशिप एग्रीमेंट से होता है. अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में है कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसके हिसाब से दिया जाता है. अदरवाइज एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाता है और आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं. यही एक ऐसा आइटम है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से दिखाया जाता है. अदरवाइज यदि वहाँ नहीं दिखाया गया है, आप सीधे सीधे क्वेश्चन के आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करके जो प्रॉफिट बचता है उसको अमाउंट कॉलम में दिखाते हैं. तो ये दो तरीका है इंटरेस्ट ऑन लोन को दिखाने का. आइदर यू रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर एग्रीमेंट और यू मे डायरेक्टली डिडक्ट इन द क्रेडिट साइड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट of profit and loss appropriation account, and the remaining amount you will record right in the amount column. This is the one of the important point, one of the important basis of distinction. And for profit and loss appropriation account, it is fully prepared on the basis of partnership agreement. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया जाता है यह पूरी तरह से साझेदारी समझौते पर आधारित होता है. और यदि किसी बात की चर्चा साझेदारी समझौते में नहीं की गई है और उस आइटम को रिकॉर्ड किया जाना है तो फिर एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 दैट पर्टिकुलर आइटम विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. यानी सबसे पहला महत्व दिया जाता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट को. पार्टनरशिप एग्रीमेंट मीन्स ऑलरेडी आई हैव क्लियर्ड बिफोर यू दैट योर क्वेश्चन इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट. आपका क्वेश्चन ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसको आप मान लीजिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट. तो उस क्वेश्चन में यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो चीज़ दिया हुआ है पहले उसको हम फॉलो करेंगे और किसी चीज़ पर विवाद है वो उस क्वेश्चन में नहीं दिया है यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं है, इसको आप सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को उसमें नहीं है, दैट इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट. तो फिर एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो हमने आपको बताया पिछले क्लास में उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा. तो इट इज वेरी क्लियर दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट is prepared on the basis of partnership agreement. Now, our last point, last basis of distinction is matching principle. Matching principle means
matching of revenue against any expenses. Then profit and loss account is followed matching principle while preparing this profit and loss account to find out net profit, net loss. But matching principle is not followed while preparing profit and loss appropriation account. Now, thank you very much, my dear students. I hope that you have enjoyed very well today also. Like this, cooperate me and enjoy your accountancy classes. Thank you.